have a strong enough body कि वो fetus को enough support मिले in those grave circumstances. So no doubt the Venus of Willendorf was considered a beauty standard in the hunter-gatherer ancestors. Ancient Greece, where the obsession with perfect bodies began. तो एंशियंट ग्रीस में एक ब्यूटीफुल फेस और ब्यूटीफुल फीचर्स को इनर ब्यूटी से एसोसिएट किया जाता था। तो बेसिकली अगर किसी के फेस में एक डिफेक्ट हो उन्हें कैरेक्टरलेस कंसिडर किया जाता था। एंशियंट ग्रीस के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स उनकी आर्टवर्क में रिफ्लेक्ट होते थे। एक प्लम्प वुमेन को ब्यूटीफुल कंसिडर किया जाता था एट दैट टाइम। जहाँ प्लम्प बॉडी वुमेन के लिए आइडियल मानी जाती थी, वही मेन के लिए हैविंग अ चिजल्ड एंड स्ट्रक्चर्ड बॉडी वाज कंसिडर्ड आइडियल। एफ्रोडाइटी इज द गॉडेस ऑफ लव एंड फेमिनिनिटी एंड उनका स्टैचू वीनस डी मिलो जो 100 BCE में कार्व किया गया था is considered the ideal standard of beauty for a woman. She had large hips and a large upper body, which again depicts the plump body type of an ancient Greek woman. वुमेन की प्लम्प बॉडी टाइप बोला जाता था कि सिग्निफाइज द वेल्थ ऑफ द फैमिली और ऑफ द हस्बैंड इन एंशिएंट ग्रीक टाइम्स। इस टाइम में लोगों को सिमेट्रिकल फीचर से भी एक बहुत बड़ा लगाव था। इनफैक्ट इनके पास ब्यूटी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी था। वेल, पाइथागोरस मेड ए मैथमेटिकल स्टैंडर्ड कॉल्ड द गोल्डन रेशियो ऑफ परफेक्शन। इससे एक वुमेन की फेस की ब्यूटी मेजर की जा सकती थी। तब की ग्रीक वुमेन यूनिब्राउ से ऑब्सेस्ड थी। इनफैक्ट दे यूज्ड टू आल्सो यूज ब्लैक पाउडर टू इमिटेट द लुक ऑफ अ यूनिब्राउ। एंशिएंट ग्रीस में यूनिब्राउज का अलग ही मीनिंग था। इट represented purity and intelligence. So married women were seen to be flaunting their natural eyebrows, whereas a lot of unmarried single women used to draw on their unibrows. Beauty standards in Renaissance Italy. Renaissance Italy एक मेल डोमिनेटेड एरा थी जो कैथलिक चर्च के हिसाब से चलती थी। इस एरा में इट वाज इम्पोर्टेंट कि अ वुमन ड्रेसेस इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट हर फाइनेंशियल सुपीरियोरिटी एंड द स्टेटस ऑफ हर हस्बैंड। तो फुल ऑन सेक्सिज्म वाज सीन इन दिस एरा दैट स्टार्टेड समवेयर इन द 14th century and ended around the 17th century. Women with pale skin and rosy cheeks were preferred in this time. आप बिलीव नहीं करोगे कि women क्या-क्या किया करती थी इस लुक को पाने के लिए। Literally, leeches were put on a woman's skin to suck out the blood from in order to look pale. Sometimes it went well, other times they had skin lesions. Leech suck pale skin पर women saffron use किया करती थी in order to get that rosy look. क्या आपने Instagram पर वो रील देखा है जिसमें एक लड़की कहती है कि if you are in love, your pupil will expand if you look at this person? वैसे ही the ancient Renaissance community had an obsession with having dilated large pupils. ये obsession पूरा करने के लिए इनकी ladies एक plant जिसका नाम था Antropa belladonna, इसके जूस को अपनी आंखों में डालती थी। आप सरप्राइज हो गए because this is one of the most dangerous plants in the world and इसके सारे parts poisonous है। Just one little droplet of this plant juice can cause vision dilation, blurriness of the eyes and loss of vision. Isn't it scary to see how these women fell prey to these beauty standards and it actually costed them their vision and in some cases even their lives? Another very weird beauty standard in the Renaissance era was the high hairline trend. इसमें women जिनके hairlines इतने high नहीं होते, वो अपने hair को actually pluck out करते थे in order to create a very high forehead and a big hairline. Imagine the pain in the name of beauty. इन सारे अजीब beauty standards के बीच एक अच्छी चीज about the Renaissance era था that they preferred natural bodies, which is actually a good thing as compared to something very weird we're going to see in the next point. The Victorian era. So the women of the Victorian era continued being huge fans of pale skin after the reign of Queen Elizabeth. जहाँ क्वीन एलिजाबेथ इतना ज्यादा मेकअप यूज करती थी कि शी इज नोन टू हैव डाइड यूजिंग मेकअप, वही क्वीन विक्टोरिया कंसिडर्ड मेकअप टू बी इम्पोलाइट एंड स्कैंडलस, जिसकी वजह से मेकअप पर बहुत ज्यादा टैबू जुड़ गया और वुमेन चुप चुप कर मेकअप यूज करना शुरू कर दिए। वुमेन आर्सेनिक जैसे पॉइजनस केमिकल्स इंजेस्ट करती थी जस्ट टू गेट यंगर एंड हेल्दियर लुकिंग स्किन। पेल स्किन पाने के लिए लेड पाउडर यूज करने से लेकर बेलाडोना आइज पाने के लिए द रेनाइसेंस वुमेन ऑलमोस्ट बेथ देमसेल्व्स इन पॉइजन। परफेक्ट आई मेकअप पाने के लिए विमेन पिच, रेजिन और फ्रैंकिनसेंस को हीट करके एक मिक्सचर बनाकर अपने आईलिड्स और अपने लैशेस पर लगाती थी। क्या आपको पता है कि ये 3 इंग्रेडिएंट्स में से जो पिच है वो आज के टाइम में रोड के टार को बनाने के लिए यूज किया जाता है। Imagine putting tar so close to one of the most sensitive areas of our body. Oh, and how can we forget women के waist को deform करने वाले corsets? थिनर वेस्ट बनाने के लिए विमेन को एक बहुत यंग एज से कॉर्सेट पहनाया जाता था। इसकी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे लाइक स्पाइन डिसलोकेशन एंड रिब्स का श्रिंक होना। बट अलास, मेल जेंडर के एक दिए गए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को हासिल करने के लिए women went out of their way and hurt themselves knowingly and sometimes unknowingly. Beauty standards we saw in the recent past and the emergence of media. Western world में कई सारे beauty standards आए और गए।
चार्ल्स डेना गिब्सन के इलस्ट्रेशन से द गिब्सन गर्ल को आइडलाइज किया गया। एवलिन निस्बेट जो एक फेमस एक्ट्रेस और मॉडल थी, उन्होंने गिब्सन गर्ल के इलस्ट्रेशन को अपने ही फोटोग्राफ्स में रिप्रेजेंट करना शुरू किया, which actually started the revolution of having larger breasts and wider hips। लेकिन ईयर 1920 में ये सालों से चलते आने वाले फीमेल ब्यूटी स्टैंडर्ड को कुछ सालों के लिए ही सही एक ब्रेक मिल गया। सरप्राइजिंगली एट दिस पॉइंट इन टाइम स्मॉलर चेस्ट, लेसर कर्व्स एंड शॉर्टर हेयर वर इन फैशन। लेकिन आफ्टर दैट द विक्टोरियन एरा से प्रोपगेट हुआ जो आवर-ग्लास फिगर का क्रेज था, वो यूनाइटेड स्टेट्स में आ पहुंचा एंड हॉलीवुड ने इसे ग्रेसफुली अडैप्ट कर लिया। अमेरिकन विमेन अपनी बॉडीज को हॉलीवुड के पैरामीटर से कंपेयर करने लगी एंड मैरिलिन मनरो वाज कंसिडर्ड एज द एपिटोम ऑफ एन आवर-ग्लास फिगर इन हॉलीवुड कल्चर। लेकिन 1960s में फ्लैपर एरा ट्रेंड में आ गया, जहां बॉक्सी बॉयज फिगर्स को आइडलाइज किया गया। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की शुरुआत तो एक बायोलॉजिकली वैलिड रीजन से ही हुई थी, which indirectly related to being able to bear a child and fertility. So what started for a good reason ended up badly. समय बीता गया और इवेंचुअली उस बायोलॉजिकल रीजनिंग को रिप्लेस कर दिया गया बाय सुपरफिशियल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स सेट बाय ह्यूमंस। बट फर्टिलिटी इज नॉट इवन अ कंसर्न एनीमोर, क्योंकि आजकल के ह्यूमंस रिप्रोडक्शन के लिए नहीं बल्कि सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए इस एक्टिविटी में इंडल्ज करते हैं। तो पहले वुमेन के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का कंट्रोल हुआ करता था मेल आर्टिस्ट के हाथों में, बट टुडे इट्स इन द हैंड्स ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया, फिल्म्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई थिंक इट्स टाइम दैट वी एज वुमेन क्लेम द पावर टू बी एंड मेक आवर ओन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स according to what makes us feel beautiful. We do not need to succumb to the pressures of today's media and have unrealistic expectations of ourselves in order to look beautiful. Films, magazines और beauty pageants ने हमेशा एक ऐसा body type प्रमोट किया है जो naturally healthy नहीं है और basically impossible है। Women are naturally meant to be curvier and more full than men in order to be able to reproduce and have healthy children, which is why that beauty standard was set in the first place. We must keep that in mind and move forward in our lives, idolizing inner beauty rather than physical attributes for beauty. Beauty सब नहीं क्या, क्योंकि जब वो सब्जी लेने भी उतरता है तो लड़कियां उसका पीछा नहीं छोड़ती। स्कूल में तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। उसकी ऐसी बातें सुन और वियर्ड हरकतें देख उसकी फैमिली बड़ी चिंतित रहती थी कि आखिर हमारा बेटा ऐसा क्यों है, वो हम पर क्यों नहीं गया अपने फेम को एंजॉय करने वाला। ओकिस ने भी कई सारी कोशिशें की थी कि कुलिन को वो अपनी तरह बना सके, पर उसकी पसंद पूछने पर कि आखिर उसे कैसी लड़कियां पसंद है तो कुलिन कहता है सुंदर, समझदार, दयालु, बट हाँ वो मुझे पसंद ना करे तब। इन शॉर्ट वो बंदा सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाह रहा था, जो इस फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके पेरेंट्स भी सोचते हैं आखिर क्या किया जाए, नॉर्मल लाइफ के चक्कर में ये तो दुनिया में किसी से बात भी नहीं करेगा। बास्केटबॉल खेलने का बोलो तो इसे चेस पसंद है, स्कूल जाने को बोलो तो होम स्कूलिंग करना है। तभी ओकिस आइडिया देता है इसे स्कूल भेजना चाहिए, वहीं ये सोशलाइज करेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर इसे राजी करे तो करे कैसे, इसके लिए ओकिस एक और आइडिया देता है, आप दोनों अपने कमरे से जोर से बात करना ताकि कुलिन उसे सुन सके। और होता बिल्कुल ऐसा ही है। कुलिन जब नीचे पानी लेने आता है तो फादर अपने कमरे से चिल्लाकर कह रहे थे मेरी जॉब शायद छिन जाएगी और मुझे एक शो पे काम करना होगा पैसों के लिए। अभी हमारे लिए फाइनेंशियल सिचुएशन भी हार्ड रहेगी, पर तभी हमें कुलिन के होम स्कूलिंग के खर्चे देने ही होंगे। इन सभी बातों को सुन कुलिन के दिमाग पर असर हो रहा था एंड ओकिस वॉकी टॉकी से कहता है लगे रहो, एकदम परफेक्ट जा रहा है सब। एंड फिर अगले सुबह कुलिन आकर अपने पेरेंट्स से कहता है मुझे स्कूल जाना है, घर पे पढ़ने पे बेकार में ज़्यादा खर्च हो रही है। पेरेंट्स ये सुन खुश हो जाते हैं कि आखिरकार तीर सही निशाने पर लगा है। बट तभी कुलिन कहता है पर मेरी एक शर्त है, वो स्कूल ऑल बॉयज़ होना चाहिए। एंड इसके लिए भी वो लोग मान जाते हैं कि कोई ना सही एटलीस्ट कोई स्कूल तो जाए। कुलिन फिर निकल जाता है ओकिस के साथ अपने पहले दिन के लिए, पर स्कूल में वो हेलमेट लगा कर एंटर करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कोई यहाँ भी उसके पीछे पड़ जाए। पर ऑल बॉयज स्कूल में कौन ही पीछे पड़ेगा, मे बी टीचर्स। मेन गेट से क्लास तक जाते हुए उसे बहुत सारे अतरंगी बच्चे दिखते हैं, बट उन बच्चों के लिए सबसे अतरंगी चीज़ थी कुलिन, क्योंकि क्लास में हेलमेट पहनकर कौन ही आता है। अब ये जनाब गए हैं तो क्या ही कर सकता है, पर क्लास के बुलीज यानी बैड बॉयज उसे बैठने की जगह भी नहीं देते। और तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है और वो उसे हेलमेट पहना देख बहुत डांटती है और कहती है इसे अभी निकालो फौरन। कुलिन मना करा था बट वो बहुत गुस्सा करती है, तो वो आखिरकार हेलमेट अपना निकाल देता है। एंड जब वो अपना फेस दिखाता है तो टीचर ये देख बिल्कुल बेहोश हो गई थी और तुरंत वहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। अब उसके हैंडसमनेस के चर्चे पूरे स्कूल में थे। एंड तभी हम देखते हैं स्कूल के बैड बॉयज सिद्धि उसकी गैंग कुलिन को पकड़कर बांध देते हैं और वो उसे कहते हैं हम तुम्हें छोड़ देंगे अगर तुम हमारा एक काम पूरा कर दो तब। वो काम था
BBM ऑल गर्ल्स स्कूल जाकर प्रॉम के लिए लड़कियों को इनवाइट करने का। पिछले 3 साल से वो लोग इस कोशिश में है, बट BBM गर्ल्स वाले इन्हें भाव देते ही नहीं। लेकिन कुलिन के हैंडसमनेस से वो पक्का मान जाएंगे, पर वो उसे वार्निंग भी देते हैं कि अगर कुलिन उनकी बात नहीं माना और नहीं किया तो उसे वो बुरी तरह मारेंगे। वो उन तीनों गुंडों के साथ एक और बंदा भी था जिसका काम था कुलिन को स्कूल तक लेकर जाने का। बट कुलिन कहता है, पागल हो क्या, ये तो साफ साफ बोलेंगे मैं जा रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफिस में कंप्लेन करने। बट उस बंदे को क्या ही पता था कि प्रिंसिपल खुद सिद्धि के फादर हैं, और वो भी कुलिन से धमकी भरी रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ चले जाओ, BBM से प्रॉम की इन्विटेशन ला दूँ, मेरे बेटे का भी बहुत मन है, वैसे हमारे स्कूल की रेप्यूटेशन भी बढ़ जाएगी, पर अगर तुम नहीं गए तो हम तुम्हें ग्रेजुएट होने नहीं देंगे। कुलिन निराश होकर बैठ जाता है। एंड तभी उसके पास वही दूसरा शख्स कीबो आता है। वो कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था। दोनों एक दूसरे को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं एंड कीबो अपने बारे में सब कुछ बताता है कि कुलिन के पहले वो लोग उससे भी बहुत बुली करते थे। एक्चुअली सिद्धि और कीबो के बड़े भाई के पीछे कॉम्पिटिशन थी और कीबो के बड़े भाई उसे हमेशा हरा दिया करते थे। बट इनकी स्कूल से पास आउट हो जाने के बाद सिद्धि और उसकी गैंग कीबो को हमेशा बुली करने लगती है। वहाँ उन दोनों के बीच काफ़ी बातें हो रही थी एंड वो थोड़े अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। एंड अगले दिन वो दोनों BBM यानी ब्यूटी ब्रेन मैनर वाले स्कूल जाते हैं, जैसे सारी लड़कियां कीबो को दे उसका मजाक उड़ाती हैं और उसे भगाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे स्कूल में एंटर करने की। एंड वहाँ पर वो कुलिन को भी कह रहे थे कि अपना हेलमेट उतारो, तुम भी पक्का इसकी तरह बुरे दिखते होगे, तुम दोनों को यहाँ कभी नहीं आना चाहिए था। लेकिन तभी कुलिन अपना हेलमेट उतारता है और अगले सीन में वहाँ रिपोर्टर्स, मीडिया, एम्बुलेंस सब आ चुके थे, क्योंकि आधे लोग प्यार में घायल थे और बाकी आधे सच में। यहाँ की सिचुएशन देख एक बार तो ऑडियंस भी मन में सोचने लगती है कि सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेटेड नहीं हो गई, क्योंकि सारी लड़कियां लिटरली ज़मीन पर गिरी हुई थी, क्योंकि कुलिन के हैंडसमनेस को कोई भी झेल नहीं पा रहा था, एज इफ वहाँ पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब फटा हो। फिर अगले सीन हम देखते हैं कुलिन के नाम के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ जम गई थी कि उसके पेरेंट्स और उसके भाई इस पर कैपिटलाइज करने लगते हैं। उन्होंने मैस कुलिन हाउस टूर करके प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था, या सारी लड़कियाँ 35,000 रुपया देकर टूर लेने आ रही थी। इंडोनेशिया की करेंसी को भी रुपया ही कहते हैं। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली ये थी कि This is one app you won't want to skip. Get it today in the App Store. कि किसी को भी फिक्र नहीं है कि बेचारा असली कुलिन कहाँ पर गायब है। कुलिन अपनी फैमिली को टीवी पे इतना सेल्फिश होता देख बिल्कुल इमोशनल हो गया था और वो भागकर एक बिल्डिंग के छत पर चला आता है, ये सोचकर कि उसकी फैमिली को उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं, उन्हें तो बस उसके नाम पर यार तुम्हें देख मैं ऐसा क्यों करूं, और वो वहां से निकल लेती है। एंड कुलिन का ये देख दिल जोरों से धड़कने लगता है, बिकॉज शी वॉज द वन जिसे वो न जाने कब से ढूंढ रहा था। लेकिन लड़की तो अभी गई, अभी मेन काम बाकी है रात में सोने का इंतजाम करने का। इसके लिए वो कीबो को कॉल करता है और उसके घर पर सिर्फ वो और उसकी ग्रैंडमा टीवी में ड्रामास देखना एंड ड्रामास की कैरेक्टर्स के लिए फील करना, ये जानते हुए भी कि वो सारे फेक हैं, रियल में ऐसा नहीं चल रहा। फिर कीबो की अजीब सी हंसी, उसके थोड़े वियर्ड से हरकतें भी, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है ये सभी चीज़ें उसे पसंद आने लगती हैं। एंड अगर बात की जाए वो टीवी ड्रामा की तो वो तो उसका पर्सनल फैन बन गया था। एंड अब कीबो और वो बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स थे। एक दिन उनकी ग्रैंडमा उनसे कहती है, घर पर कितने वीडियो गेम्स खेलोगे, जाकर बाहर फिजिकल एक्टिविटी करो। और दोनों फ्यूटसल खेलने चले जाते हैं। एंड पहले तो कुलिन घबरा रहा था कि वहाँ भी लड़कियाँ ना आ जाएं, बट कीबो के कहने पर वो कॉन्फिडेंटली चला जाता है। कीबो ने उसे ये भी वहाँ पर कहा था कि शायद आज वहाँ उसे उसकी क्रश दिख जाए तो वो कुलिन को भी उससे ज़रूर मिल पाएगा। लेकिन फिर वहाँ फुटसल खेलते वक्त कुछ बड़ा वियर्ड होता है, उसके स्वेट की बूंदें ओपोनेंट टीम के प्लेयर्स पर गिरती हैं और अगले ही पल वो कुलिन के जितने हैंडसम हो जाते हैं और मैच छोड़ो सारी लड़कियां उन्हें अपने साथ ले जाती हैं। कि वो कहता है,